Hello students, welcome to the next lecture of PHP. Web development using PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PHP. ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ we are going to discuss decision making statements. If statement, if else statement, if else if else statement, and in the end we'll be discussing switch statement. So PHP ਦੇ ਵਿੱਚ decision making statements ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? decision making statements ਨੂੰ conditional statements ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ decision making means ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ decision ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ. ਸੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ PHP ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ PHP conditional statements allow you to make a decision based upon the result of a condition. ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ. These statements are called decision making statements or conditional statements. So decision making statements ਤੇ conditional statements are the same thing. So decision making means कि ਜਿਹੜੀਆਂ statements ਦੇ basis ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ decision ਲੈਣਾ ਹੈ and ਕਿਸੇ condition ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ depend ਕਰਦੀਆਂ. PHP provides us 4 conditional statements. So PHP 4 conditional statements ਨੂੰ support ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ PHP ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਸੋ ਇਹ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਅਸ ਟੂ ਸੈਟ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਇਫ ਦੈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਇਫ ਟਰੂ ਦੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦਿਸ ਕੋਡ. ਸੋ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. ਇਫ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ PHP ਸਕ੍ਰਿਪਟ वेरिएबल x इक्वल्स टू 12. एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 12. इफ कंडीशन लगाई इसलिए इनू कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं. इफ वेरिएबल x ग्रेटर दैन 0, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 तो ग्रेटर है दैन इको द नंबर इज पॉजिटिव. सैमीकोलन स्टेटमेंट एंड की, करली ब्रेसिस बंद किए. इफ स्टेटमेंट दी करली ब्रेसिस है दैन PHP स्क्रिप्ट नू क्लोज किया. सो ये इफ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਦ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 12 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ. ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 12. ਇਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ 12, ਸੋ 12 ਇਜ਼ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0. सो कंडीशन इज ट्रू, इस करके जो इफ दे अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा.
इफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है इफ वाला। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फिर केड़ा ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, एल्स वाला। सो दो ब्लॉक्स है जिदा पिछे सिर्फ एक ब्लॉक सीगा इफ दी एग्जाम्पल च, एक ब्लॉक सीगा इफ वाला कि अगर कंडीशन ट्रू है सो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। सो सिंटेक्स इज इफ कंडीशन, इफ दे अंदर कंडीशन लिखी, अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट दिस कोड, एल्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इहदा कंसैप्ट है कंडीशन ते गए टेस्ट एक्सप्रैशन ते, अगर तो वो ट्रू है इफ वाली बॉडी रन हो जाएगी जो इफ दे अंदर है, अगर फॉल्स है जो एल्स दे अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन स्टॉप। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। PHP स्क्रिप्ट इज स्टार्टेड, वेरिएबल x इक्वल्स टू -12 सेमीकोलन, x वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है -12। इफ कंडीशन लगाई कि इफ वेरिएबल x इज ग्रेटर दैन 0, अगर वेरिएबल x की वैल्यू 0 तो ग्रेटर है इको करवाओ द नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इको करवाओ द नंबर इज नैगेटिव। सो जो ये प्रोग्राम रन होएगा वेरिएबल x की वैल्यू है -12, इफ -12 इज ग्रेटर दैन 0, -12 ग्रेटर दैन 0 नहीं है दैट मीन्स कि एक कंडीशन होगी फॉल्स, मतलब इफ वाला क्लॉज नहीं एग्जीक्यूट होएगा। केड़ा एग्जीक्यूट होएगा, जो भी एल्स च लिखा होएगा। सो इफ दी कंडीशन चेक करनी है, इफ दी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला चलेगा, एल्स च की लिखा नंबर इज नैगेटिव, सो आउटपुट इज द नंबर इज नैगेटिव। सो ये डिफरेंस है इफ दे विच ते एल्स दे विच। इफ दे विच असी कंडीशन देनी है, जो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला चलेगा, इफ एल्स दे विच जे कंडीशन ट्रू है इफ वाला चलिया, नहीं ट्रू तो एल्स वाला चलेगा। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस अलाउज अस टू यूज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो जो सानू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत है फिर असी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस ऑफ ट्रू केसेस। जो ट्रू केसेस दियां मल्टीपल कंडीशंस ने, एक तो ज़्यादा बार ट्रू केसेस हो सकते हैं, फिर असी ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सो सिंटेक्स इफ एल्स का की है, इफ कंडीशन, इफ दी कंडीशन दी करली ब्रेसिस, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, एल्स इफ अगर ये ट्रू है इनू एग्जीक्यूट कर दो, एल्स इफ जे ए भी ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ए ट्रू है तो इनू एग्जीक्यूट कर दो। एल्स अगर इन्हों चो कुछ भी ट्रू नहीं है देन एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। सो इफ कंडीशन लगाई ट्रू है तो ए एग्जीक्यूट करो, नहीं ट्रू तो एल्स इफ ते चले जाओ, एल्स इफ वाली ट्रू है ए एग्जीक्यूट करो, नहीं ट्रू नेक्स्ट एल्स इफ ते चले जाओ। जिन्नियां भी एल्स इफ स्टेटमेंट्स चाहिए मल्टीपल एल्स इफ असी लगा सकते हैं। अगर कोई भी ट्रू नहीं है दैट मीन्स कि एल्स वाली चलेगी। सो टेस्ट एक्सप्रेशन ते गए, जो भी कंडीशन है टेस्ट एक्सप्रेशन 1 मीन्स जो कंडीशन है अगर ट्रू है इफ कंडीशन चल जाएगी एंड प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अगर वो फॉल्स है टेस्ट एक्सप्रेशन 2 ते गए, फिर कंडीशन 2 ते गए, अगर ट्रू है इफ दी बॉडी चलेगी, नहीं ट्रू नेक्स्ट से चले गए एल्स इफ ते चले जाए। उस तो बाद अगर ट्रू है बॉडी इफ दी चलेगी, फॉल्स है जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो रन होएगी। सो द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। सो एग्जाम्पल देख लेने इफ एल्स स्टेटमेंट दी। PHP स्क्रिप्ट में स्टार्ट किया, वेरीएबल x इक्वल्स टू ऑगस्ट, वेरीएबल x लिया जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है,
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਗਸਤ। ਇਫ वेरिएबल x इक्वल्स टू जनवरी, अगर वेरिएबल की वैल्यू जनवरी है इको करवाओ हैप्पी रिपब्लिक डे। एल्स इफ अगर ये ट्रू नहीं है, एल्स इफ वेरिएबल x की वैल्यू अगस्त है इको करवाओ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एल्स अगर ये सारे एक्सप्रैशंस चो कुछ भी ट्रू नहीं है, फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी इको नथिंग टू शो, करली ब्रेसिस एल्स की क्लोज की, PHP की स्क्रिप्ट नू क्लोज किया। सो वैन दिस प्रोग्राम विल रन, वेरिएबल एक्स की वैल्यू अगस्त है, सो इफ तो स्टार्ट होएगा इफ एक्स की वैल्यू की है अगस्त, अगस्त इज इक्वल टू जनवरी, नो दैट मीनस ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, ये नहीं रन होएगा। एल्स इफ वेरिएबल एक्स की वैल्यू की है अगस्त, अगस्त इज इक्वल्स टू अगस्त, कंडीशन ट्रू होगी, दैट मीनस ये वाला ब्लॉक रन होएगा। सो आउटपुट होएगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो इफ एल्स स्टेटमेंट नूं असीं उदों यूज़ करते हैं जदों ट्रू दे केसिस च साडे कोल मल्टीपल केसिस ने, एक तो ज़्यादा केसिस जदों ट्रू हो सकते हैं, वी कैन यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ दे विच ओही कंडीशन, जे कंडीशन ट्रू है इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स इफ सेकेंड ब्लॉक चलेगा, नेक्स्ट एल्स इफ अगर थर्ड वाला एक्सप्रेशन ट्रू है थर्ड चलेगा, एंड अगर उन्होंने कुछ भी ट्रू नहीं है फिर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट इज स्विच स्टेटमेंट। द स्विच परफॉर्म्स इन वेरियस केसेस, इट हैज़ वेरियस केसेस टू विच इट मैचेस द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स अ पर्टिकुलर केस ब्लॉक। स्विच स्टेटमेंट की करती है, स्विच स्टेटमेंट के विच बहुत सारे केसेस होंगे हैं। स्विच स्टेटमेंट केस नू मैच करती है, कंडीशन नू मैच किया केस दे नाल, जिहड़ी कंडीशन मैच होगी वो वाला केस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट फर्स्ट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रैशन एंड दैन कंपेयर्स विद द वैल्यूज़ ऑफ ईच केस। ये पहला एक्सप्रैशन नू इवैल्यूएट कर लैंदी है, इवैल्यूएट करन तो बाद हर केस दे नाल उन्होंने मैच करती है, जिहदे नाल मैच हो गया वो वाला केस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस मैच हो गया सो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता। स्विच स्टेटमेंट दे विच दो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, ब्रेक स्टेटमेंट ते डिफॉल्ट स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द ऑटोमैटिक कंट्रोल फ्लो इनटू द नेक्स्ट केसेस एंड एग्जिट फ्रॉम द स्विच केस। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट की करती है कि जिहड़ा ऑटोमैटिक फ्लो चल रहा है एक केस तो दूसरे केस विच उन्होंने ब्रेक कर देंदी है एंड स्विच केस तो बाहर निकल जाती है। सो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि जिहड़ा ऑटोमैटिकली फ्लो कंट्रोल है एक केस तो दूसरे केस विच जाना, उन्होंने ये स्टॉप कर देंदी है। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट कंटेन्स द कोड दैट वुड एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द केसेस मैच। अगर कोई भी केस मैच नहीं होंदा फिर जो डिफॉल्ट दे विच लिखिया होएगा वो वाली कोड एग्जीक्यूट होएगा। सो सिंटैक्स है, स्विच स्टेटमेंट लिखी, केस स्टेटमेंट 1 जो कोड एग्जीक्यूट होना है अगर एन की वैल्यू की है स्टेटमेंट 1। सो स्विच स्टेटमेंट की है, ये एक्सप्रैशन नू केस दे नाल मैच करेगा। स्विच स्टेटमेंट की करता एक्सप्रैशन नू इवैल्यूएट कर लैंदा है, फिर वो एक्सप्रैशन नू मैच करता है केस दे नाल। सो एक्सप्रैशन की है इत्थे एन एंड केस की है स्टेटमेंट 1। अगर एन स्टेटमेंट 1 दे इक्वल है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा। फिर ब्रेक मीनस एक कोड एग्जीक्यूट हो गया, ऑटोमैटिकली वो सेकेंड केस से नहीं जाएगा, स्विच दे केस तो एग्जिट कर जाएगा। दैन केस का नाम है स्टेटमेंट 2। हुण अगर एक्सप्रैशन है जिहड़ा एन, अगर एन स्टेटमेंट 2 दे इक्वल है ये एग्जीक्यूट होएगा, अगर एन स्टेटमेंट 3 दे इक्वल है ये केस एग्जीक्यूट होएगा, अगर एन स्टेटमेंट 4 दे इक्वल है ये केस एग्जीक्यूट होएगा। हर केस तो बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की जा रही है। ब्रेक स्टेटमेंट का परपस होंदा है कि वो कोड एग्जीक्यूट करन तो बाद जिहड़ा ऑटोमैटिकली कंट्रोल एक केस तो दूसरे केस विच जा रहा उहदे तो एग्जिट कर देवे। डिफॉल्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन नॉट इक्वल्स टू एनी केस। अगर एक्सप्रैशन है जिहड़ा एन है वो किसी भी केस दे नाल मैच नहीं हुंदा
ਫਿਰ ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆਫ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਵਿਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੇਸ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੇਸ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ 2 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੇਸ 3 ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ 3 ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਡਿਫੌਲਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, PHP ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਡ, ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਗਾਇਆ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ FAV ਕਲਰ, ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰੈਡ, ਇਕੋ योर फेवरेट कलर इज़ रेड, दैन ब्रेक, केस स्टार्ट किया ब्लू, इको करवाया योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, दैन ब्रेक स्टेटमेंट। नैक्सट केस इज़ ग्रीन, इको योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, दैन ब्रेक स्टेटमेंट। एंड डिफॉल्ट च लिखिया इको योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। सो जो ये स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, वेरीएबल की वैल्यू है रेड, रेड कित्थे मैच हो रहा है फर्स्ट केस दे विच, सो आउटपुट की आएगी योर फेवरेट कलर इज़ रेड। सो स्विच स्टेटमेंट ने जो भी एक्सप्रैशन है उन्होंने केस की वैल्यू के नाल मैच करना है। एक्सप्रैशन इवैल्यूएट कर लिया, केस की वैल्यू नाल मैच किया, जी केस की वैल्यू नाल मैच हो गया उही कोड एग्जीक्यूट करके वो आउटपुट देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन PHP। थैंक यू स्टूडेंट्स।